Hello amigos, this is me Prabhajita Roy this side and I hope you all are doing well. As exam हम लोगों का चला गया है already HSLC exam, but it doesn't stop us from knowing the right answers to the questions, isn't it? So इस वीडियो में तुम लोगों को वो सारे के सारे questions का जवाब मिल जाएगा जो कि already HSLC examination में आ चुका है and the subject is English, you guys know that already. So I will be solving the question paper in front of you people in order to let you all know कि answers correct है भी या नहीं. So let's start the class. So first section D में हम लोग का क्या मिला है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? Fill in the blanks in the following sentences with right determinants. तो वहाँ पे 4 questions तुम लोग को दिया हुआ था and the marks was 2. Okay, so we will be starting from the first sentence. Mr. Barua is a man of dash words. क्या हो सकता है यहाँ पे? Mr. Barua is a man of dash words. क्या हो सकता है? Few हो सकता है? Mr. Barua is a man of few words. Next question. Miss Manisha married dash European gentleman. European Y का आवाज आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या बैठेगा? क्या यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है ना, तो क्या बैठेगा यहाँ पे? वावल बैठेगा या कॉन्सोनेंट बैठेगा? Consonant. So it will be Miss Manisha married a European gentleman. Next, I want only dash encouragement from you. क्या होगा यहाँ पे? I want only a little encouragement from you. A little. Next, dash of the participants will be given a certificate. तो क्या हो सकता है यहाँ पे? Each of the participants will be given a certificate. Okay, we will be moving to the next question. Fill in the blanks with the correct prepositions from among the choices given in the bracket. So in this you guys have the options. Choices था already तुम लोगों का, तो उसमें से तुम लोगों को सही आंसर टिक करना था. ठीक है, we will be starting with the first sentence. They are sitting dash the dining table. क्या हो सकता है? They are sitting at the dining table. Next, Ravi is senior dash me by 2 years. What will be the answer? Ravi is senior to me by 2 years. Next, he was prevented dash going to Delhi. क्या हो सकता है यहाँ पे? He was prevented from going to Delhi. Next, floor is made dash wheat. Floor is made from wheat. Okay, so let me write the answers here. It will be at, next is to, next is from, and the last one is from. Done. We will be moving to the next slide. Rewrite the sentences given below, putting the verbs in the brackets in the correct tense form. तो tenses में हम लोग को already bracket में verbs दिया हुआ होता है, just उसको हम लोग को form according बिठाना होता है कि नहीं? So the first sentence is he in the bracket ring the bell when I was reading. So what will be the answer? जैसे कि आप लोगों को पता है जब sentences में एक हाफ ऑफ द सेंटेंस जैसे कि कोई पर्टिकुलर टेंस पे होता है, जैसे कि यहाँ पे वर्स रीडिंग है तो ये पर्टिकुलर टेंस क्या है? पास्ट टेंस है, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा वो भी पास्ट टेंस में ही होगा. तो यहाँ पे जो ये रिंग है उसका पास्ट फॉर्म क्या होगा? यहाँ पे क्या बिठेगा? ही रैंग द बेल. Okay, this will be the answer. He rang the bell when I was reading. क्यों हुआ? क्योंकि ये वाला पोर्शन पास्ट टेंस है, इसीलिए ये फर्स्ट वाला पोर्शन भी पास्ट टेंस ही होगा. अगर यहाँ पे प्रेजेंट होता तो पहले वाले पोर्शन भी प्रेजेंट ही होता. Similarly, it goes for future also. Next sentence. Nobody know where he lives. तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे lives है मतलब प्रेजेंट टेंस है, तो पहले वाले पोर्शन में क्या होगा? प्रेजेंट टेंस ही होगा, तो आंसर होगा nobody knows. This is your answer. Okay. Next question. The guest arrived before the dinner was set. तो यहाँ पे was है, ठीक है.
एंड देन सेट है, तो समझ में आ गया ये पास्ट टेंस है, तो इसमें क्या बिठेगा, इसमें ये काम ऑलरेडी हो गया है पर इसके पहले कुछ हुआ है, तो मतलब मोर पास्ट हो गया कुछ, तो इसमें क्या बैठेगा, हैड अराइव्ड। वो एक फॉर्मूला जो लोग ने ऑलरेडी मेरा टेंस का वीडियो देख लिया वो लोग को पता होगा, ये उस वीडियो में मैंने बोला है मोर पास्ट लेस पास्ट के बारे में, सो यू गाइस कैन चेक इट फ्रॉम देयर। बट इफ यू गाइस हैव नॉट चेक द वीडियो, जस्ट नो दैट मोर पास्ट एंड लेस पास्ट एक ही सेंटेंस में होता है। मोर पास्ट मतलब जो काम हम लोग उस काम के पहले कर लेते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों काम पास्ट टेंस में होते हैं, बट जो काम सबसे पहले होते हैं उसको बोला जाता है मोर पास्ट, एंड जो काम उसके बाद हुआ जाता है उसको बोला जाता है लेस पास्ट, ठीक है। वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हियर लेट्स सी द सेंटेंसेस। क्या है यहाँ पे, चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग, जिसका मार्क 2 दिया हुआ है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मिताली आस्क्ड मी इफ आई हैड अ पेन टू स्पेयर। तो इफ जिस सेंटेंसेस में होते हैं वहां पे इंटरोगेटिव वर्ड नहीं होते, तो इन द प्लेस ऑफ इंटरोगेटिव वर्ड क्या यूज किया जाता है, इफ, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सेंटेंस कैसे आएगा। मिताली said to me, comma, inverted comma, do you have a pen to spare? So ये हुआ तुम लोग का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, मदर सेड टू रफीक डू नॉट कीप इविल कंपनी इन योर लाइफ। वो कोटेशन के अंदर ऑलरेडी है, उसको हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है स्पीच में, तो क्या होगा, मदर डू नॉट कीप इविल कंपनी इन योर लाइफ, तो एडवाइस किया जा रहा है रफीक को, तो यहाँ पे होगा एडवाइज्ड रफीक not to keep evil company in his life. Okay, so this is the answer. समझ में आया इतना? We will be moving to the next slide. चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इसका मार्क भी 2 ही दिया गया है, ठीक है। तो लेट्स सॉल्व द फर्स्ट वन। शेक्सपियर रोट द प्ले हैमलेट, तो क्या होगा, द प्ले हैमलेट। रोट है यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो इसको चेंज करके क्या होता है, वॉज रिटन, वॉज वर्ड के साथ वर्ब 3 बैठता है, ठीक है। Written by Shakespeare, ये हुआ फर्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट वन, नंबर 2, माई पेन हैज बीन स्टोलन। सो ये प्रेजेंट टेंस में है, क्या होगा, यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वी हैव टू ऐड द ऑब्जेक्ट हियर, तो यहाँ पे होगा, मैंने ऐड किया someone, you guys can add anything you want to, someone has stolen my pen. It's very easy, बहुत इजी दिया, क्वेश्चन पेपर बहुत इजी हुआ, मैंने देख के समझ गया कि जितने भी मतलब जो भी एक्सरसाइज किया होगा या फिर प्रैक्टिस किया होगा, they can easily solve this question paper. It was easy, okay? So हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Combine each of the following pairs of sentences into a single sentence. Okay, so let's start with the first sentence. इसका मार्क भी 2 ही दिया गया है। He is not sincere, full stop. He is not honest. So मैं इसको चेंज करके क्या लिख सकती हूँ एक ही सेंटेंस में, He is neither sincere nor honest. Okay, this is the first sentence. Next sentence को देखते हैं हम लोग सॉल्व करके। The earth revolves around the sun. Full stop. Everybody knows it. इसको चेंज करके क्या बना सकते हैं, देखते हैं। Everybody knows that the earth
revolves round the sun. हो गया. इसमें कुछ चेंजेस इतना नहीं हुआ क्योंकि इसको पहले ला दिया और इट को हटा के मैंने दैट बिठा दिया बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट. सो आर्ट को वैसे भी लगाना होगा. सो यहाँ पे सिर्फ आर्ट लगा दिया. हो गया. एवरीबडी नोज दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन. इट्स वेरी इजी. ओके, वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Choose the correct alternatives from the choices given in the brackets and rewrite the sentences. Okay, so you guys, I hope you guys have rewritten the sentences क्योंकि देखो सिर्फ चूज करने से नहीं होता है, अब फिर से सेंटेंस लिखना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. So the first one is nobody likes his dash behavior. उसमें ऑप्शन दिया गया है, one is childlike and the other one is childish. तो चाइल्ड लाइक हम लोग पॉजिटिव प्रेफरेंसेस में यूज़ करते हैं, उतना निगेटिविटी नहीं रहता है, बट चाइल्डिश में बहुत निगेटिविटी होता है. तो यहाँ पे ऑलरेडी द सेंटेंस स्टार्ट विथ अ निगेटिव, वो मतलब निगेटिव के साथ स्टार्ट हुआ है. तो वहाँ पे क्या होगा, चाइल्ड लाइक में और चाइल्डिश में कौन सा होगा? ऑब्वियसली चाइल्डिश ही होगा क्योंकि हम लोगों को ये पता ही है कि चाइल्डिश हम लोग निगेटिव चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं और चाइल्ड लाइक हम लोग पॉजिटिव चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं. ठीक है. सो nobody likes his childish behavior. This one, number one. Number two, the two men arrived at एज डैश सेटलमेंट में एमिएबल है, एमिकेबल है. तो एमिएबल का मतलब है दो पर्सन के बीच में जो कैरेक्टर होते हैं इसको एमिएबल बोलते हैं. पर एमिकेबल मतलब जब रिलेशंस में आ जाते हैं कोई भी बात, इसको बोला जाता है एमिकेबल. ठीक है. ये पर्सन होता है, पर्टिकुलर में आ जाता है, ये जनरल में चला जाता है. ठीक है. सो एमिएबल और एमिकेबल में कौन सा, अगर टू मैन बोला गया है तो एक मैन के बारे में बात नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे बहुत सारे मैन, इट्स प्लूरल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कौन सा लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पे द टू मैन arrived at as amicable settlement. मतलब इसमें रिलेशन के बारे में बोला जाए. कौन सा सेटलमेंट में आया? एमिकेबल, प्रॉपर सेटलमेंट में आया, दोनों के बीच में बात. ठीक है. तो ये रिलेशन हुआ ना, तो इसीलिए मैंने एमिकेबल चूज किया. ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Make sentences to illustrate the meaning of any two of the following. So any two, जिन लोगों ने ये किया है, I hope you guys have not chose the like चारों के चारों नहीं करना है आप लोगों को सिर्फ दो ही करना है इसमें से. तो I hope you guys have done it correctly. मैं यहाँ से दो लूँगी. Let's pick this one. Bring up. Bring up से क्या लिख सकते हैं? Please bring up some food for me. मैंने ऐसा लिखा, ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग भी ऐसा ही लिखा होगा, isn't it? तुम लोग ने इससे अच्छा भी सेंटेंस लिखा होगा. ठीक है. एंड नेक्स्ट आई विल बी गोइंग विद द लास्ट वन, लुक आफ्टर. लुक आफ्टर में क्या लिख सकते हैं? द किड्स दैट I look after are, लिख देते हैं adorable, लिख देते हैं. हुआ सेंटेंस, हुआ कंप्लीट. ये हुआ लुक आफ्टर, ये हुआ ब्रिंग अप. ठीक है. सो प्लीज ब्रिंग अप सम फूड फॉर मी. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस जो मैंने बनाया तुम लोग के सामने, ये हुआ द किड्स दैट आई लुक आफ्टर आर adorable. Okay, so I hope you guys have done it correctly. और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो हम लोग सब कर ही चुके हैं क्योंकि हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं और ये सब हम लोग पहले भी कर चुके हैं. इट्स नॉट दैट कि फर्स्ट टाइम मिला और फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, isn't it? So we will be moving to the next slide. करेक्ट एनी 3 ऑफ दी फॉलोइंग सेंटेंसेस. इसमें से एनी 3 आपको करना है क्योंकि मार्क्स यहाँ पे आप लोगों का 3 है. सो इसमें से मैं 3 करूँगी तुम लोग के सामने. I will be starting with the first sentence. Haren was appointed in the post. ठीक है. तो Haren was appointed in the post होगा या Haren was appointed, क्या हो सकता है आंसर? What will be the answer? Where is the incorrection?
Haran was appointed to the post. Okay, this will be the correct answer. Next, it is raining since last night. क्या होगा? Is है यहाँ पे, तो आंसर होगा it has been raining since last night. Next, how much money you need? How much money you need? क्या हो सकता है यहाँ पे? यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है जो कि हम लोग को ऐड करना पड़ेगा. ये है do. ओके, सो मैंने 3 ऑलरेडी कर लिया. Haran was appointed to the post. It is raining since last night को कैसे चेंज किया? It has been raining since last night. And the last one, how much money you need? इसमें एक वर्ड मिसिंग है. क्या है वो? Do. ओके, सो आई होप आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा एंड यू गाइस हैव डन इट करेक्टली, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 3 बोला गया है और हम लोग हड़बड़ी में क्या करते हैं, 3 बोलने से हम लोग 4 कर लेते हैं एंड वी बहुत सारे टाइम वेस्ट हो जाते हैं हम लोग का. और एग्ज़ाम में ऑलरेडी हम लोग का बहुत टेंशन होता है एंड देन वी आर हम लोग इतना चीज़ों को लेके एग्ज़ाम में जाके बैठते कि प्रेशर के बारे में हम लोग भूल ही जाते हैं कि नहीं. तो यहाँ पे 3 बोला गया, इसलिए मैं 3 ही तुम लोगों को सॉल्व करके दिखाया एंड आई होप यू गाइज हैव डन इट करेक्टली ऑल द क्वेश्चन. And even if you have not done correctly, just hope कि हम लोग को पता नहीं चलता है ना एग्ज़ाम में, जब हम लोग बैठ के दे के आते हैं उसके बाद पता चलता है ओ अच्छा मैं वो लिखा कि नहीं, या फिर हमने वो लिखा भी है पर वो गलत भी हो सकता है. दिस काइंड ऑफ थॉट्स आर वेरी नॉर्मल बट डोंट बी पैनिक. एंड अगर तुम लोग का कन्फ्यूजन है कुछ भी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना एंड डू फॉलो माई क्लासेस इन द स्कॉडेमी ऐप. ओके, थैंक यू.